بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، نمبر 1 مہمان بھوکا نہیں جا رہا، نمبر 2 ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، نمبر 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو، اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ اذان ایک جملہ سن کر اسے دہرائیں تو اس کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والد پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں مہندی، صحرا بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ یہ سب غیر شرعی اور خالص غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی، اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی، قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا، غصے میں حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو آپس میں بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند تارے گن سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि ना तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना तनक चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुँच सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान दी जाए तो हर काम छोड़ दो, यहाँ तक कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो। जो शख्स अज़ान के दरमियान बात करता है तो मौत के वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता। नमाज की पाबंदी कीजिए। नंबर 1, नमाज से रहमत नाजिल होती है। नंबर 2, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। नंबर 3, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नंबर 4, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नंबर 5, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है। नंबर 6, जन्नत की कुंजी है। नंबर 7, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नंबर 8, नमाज जहन्नुम की आग से बचाती है और नबी के आँखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में वज़ू करके सोए, एक फ़रिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वह शख्स उठता है तो फ़रिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फ़ला बंदे की मग़फ़िरत फ़रमा दे, क्योंकि वह वज़ू करके सोया है। आबाद रहे वह शख्स जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। नंबर 1, बाप की दुआ। नंबर 2, रोज़ेदार की दुआ। नंबर 3, मुसाफिर की दुआ। खाने के बाद शुक्र अदा करने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह रोज़ा रख कर सब्र करने वालों के बराबर है। किसी के सतर को देखने का गुनाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत करता है उस शख्स पर जो जानबूझकर किसी के सतर को देखता हो, और उस पर भी लानत है जो बिला अजर सतर दिखाता हो। अगले सफ़ में नमाज अदा करने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से और उनके फ़रिश्तों से पहले सफ़ पर रहमत भेजते हैं। अगले सफ़ में नमाज अदा करने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते पहले सफ़ पर रहमत भेजते हैं और मुअज्जिन के बुलंद आवाज़ के बाक़द्र उसकी मग़फ़िरत करी जाती है। खुश्की और तरी की हर चीज़ उसकी आवाज़ की तस्दीक करती है और उसके साथ नमाज पढ़ने वालों का सवाब उसको भी मिलता है। अरफा के दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन रोज़ा रखना 1 साल से अगले साल तक के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। जान रखो, मैं आपको बताऊं, फिर जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ों के लिए आजमाइश क्यों आती है? क्योंकि आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ हमें जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब इस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह इस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि आखिर तुम इस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो। चलो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। नंबर 1, हेलो नहीं अस्सलाम वालेकुम। नंबर 2, ओके नहीं इंशाअल्लाह। नंबर 3, बाय नहीं फ़ी अमानिल्लाह। नंबर 4, ग्रेट नहीं सुबहान अल्लाह। नंबर 5, फ़ाइन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 6, नाइस नहीं माशा अल्लाह। नंबर 7, थैंक्स नहीं जज़ाक अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 खूबसूरत हदीस। नंबर 1, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फ़ैसले को नहीं बदलती। नंबर 2, नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नंबर 3, सदक़े के सिवा कोई चीज़ मुसीबत को नहीं टाल सकती। नंबर 4, ज़कात के सिवा कोई चीज़ दौलत को पाक नहीं कर सकती। नंबर 5, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत मोहब्बत करता है जो हदीस पढ़कर उसे
दूसरों तक पहुँचाए। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक़ से इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ, यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह से मांगो, ना मिले फिर मांगो, ना मिले रोकर मांगो, फिर मांगते रहो, वह देगा, वही देगा, क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है। एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमेशा इतने गुनाह होने के बाद अल्लाह हमारा रिस्क बंद नहीं करता। दुनिया के तमाम मर्द अगर अंधे भी हो जाते फिर भी औरत पर पर्दा फ़र्ज़ है, क्योंकि यह हुक्म अल्लाह का है। वज़ू दुनिया का वाहिद सस्ता सैनिटाइज़र है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ करता है। कुरान की ताकत सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ की कुसादगी लाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम के भाप के असर से होता है, इसे पानी से ठंडा कर लिया करो। इद्दत शौहर जैसी अजीम नेमत छीन जाने पर औरत को चाहिए कि इद्दत गुजारे, क्योंकि यह दिन उसके गम के दिन हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वह सुकून का मतलब नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत बातें आपको कैसी लगी? कौन सी बात आपको अच्छी लगी? कमेंट में लिखकर बताएं। ऐसी मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।